Very good morning, students. Students, first of all, before starting your chapter, I want to share some information for you. Student, in this worksheet, you will get the one comprehension. It is based on Ashoka's life. Okay, this is a comprehension based question. So you have to attempt this question because this type of a questions will come in your higher classes in your board exam. Okay, so in this way, from starting of class 6 you will start learning how to attempt this comprehension types of a question. So it is my suggestion and request to you all students, don't ignore that comprehension question and you will attempt it. Okay, second is that all of you know that COVID-19 is spreading so widely and fastly, so you have to follow all the rules and regulation what you all know about it all. Okay, now we'll start our chapter 8. Ashoka, the emperor who gave up war. This chapter is related with the Ashoka. Okay, all of you heard the name of Ashoka? Yes, most of the students have watched the television serial Ashoka. Yes, so we will study about this Ashoka in this chapter. In this chapter, first of all I just want to discuss the basic point. Which points we will cover? This is empire and dynasty. Okay. Rise of Mauryan Empire. Okay, now look at here also students, Ashoka the Great. ठीक है, अशोका द ग्रेट के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स. एंड समथिंग यू विल स्टडी अबाउट द वॉर ऑफ कलिंगा ऑल्सो. Here some pictures I am showing you. This is the war of Kalinga, students, and it is a very brutal war and it is very famous also. ठीक है, so all these points. This is also one picture of war of Kalinga. Okay, we will study about the inscriptions also. Student, about the inscription I have told you in the first chapter why it is called inscription, because it is graved on the hard surface as rocks and metals. Okay, so in this chapter we will study about Dhama, and this is a Mauryan Empire. You can see this, है ना? This is all Mauryan Empire we will study. And we will study about the Dhama and his message for the future generation. Okay, Indian civilization, elsewhere the Great Wall of China. So these are all basic points which we are going to study in this chapter. First of all, we'll start about how are empires different from kingdom. स्टूडेंट, दिस इज अ सेकेंड पॉइंट ऑफ योर चैप्टर. ये जो है वो सेकेंड टॉपिक है आपके चैप्टर का, बट इसको मैं आपको थोड़ा पहले ही समझाना चाहती हूँ कि एम्पायर्स और किंगडम कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं. ओके, लिसन. एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग बिकॉज एम्पायर आर लार्जर देन किंगडम एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय द बिग आर्मीज. देखो क्लास, किंग और डम, किंग से मीन्स राजा और डम से मीन्स होता है उसका राज्य. यहाँ एक राजा और एक उसका राज्य होता है, दैट इज कॉल्ड अ किंगडम. एम्पायर मीन्स होता है साम्राज्य. साम्राज्य मीन्स जिसमें बहुत सारे राजाओं की किंगडम जो होती है वो इंक्लूड होती है, तो वो क्या बन जाता है? साम्राज्य बन जाता है. और जो एम्पायर को रूल करता है वो एम्परर कहलाता है. मीन्स वो राजाओं का राजा, सम्राट, ठीक है, वो कहलाता है. अब दोबारा से एक बार मैं दोबारा बताती हूँ. किंगडम मीन्स होता है राजा और उसका राज्य. ठीक है, तो राजा और एक राज्य हो गया. एम्पायर में बहुत सारे राजा और उनकी सारी किंगडम इंक्लूड होती है. मीन्स एम्पायर बहुत बड़ा साम्राज्य बनता है बहुत सारे किंगडम्स को मिलाकर. और जो एम्पायर पर रूल करता है, उसको चलाता है, वो क्या कहलाता है? एम्परर कहलाता है. मीन्स उसके अंडर में बहुत सारी किंगडम्स और किंग्स होते हैं. ठीक है, तो एम्पायर जो होता है वो किंगडम से बहुत बड़ा होता है. ठीक है, एम्परर्स जो है वो एम्पायर्स को रूल करते हैं. ठीक है, एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग. अब डेफिनेटली जब एम्परर्स के पास बहुत बड़ा एम्पायर होता है तो उनको राजाओं से ज्यादा बहुत सारी रिसोर्सेज की जरूरत होती है. एम्पायर आर लार्जर देन किंगडम्स एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज. ठीक है, एम्पायर को राजाओं किंगडम से ज्यादा बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज की जरूरत पड़ती है अपने आप को प्रोटेक्टेड करने के लिए. ठीक है, और दूसरे राज्यों में उनको अपने अंडर कंट्रोल करने के लिए तो एम्पायर को बहुत ज्यादा बिग आर्मीज की जरूरत होती है. दे ऑल्सो नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल हु कलेक्ट
टैक्सेस। अब उनके पास, उनको जब वो इतने बड़े एम्पायर होता है तो उसमें ऑफिसर्स भी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा नंबर्स में चाहिए होते हैं, ज्यादा चाहिए होते हैं, सो दैट कि वो अब उनके अंडर में बहुत सारी किंगडम्स होती हैं, तो इन किंगडम्स से, उन जगहों से सबसे टैक्स कलेक्ट करना होता है, तो उनको ऑफिसर्स भी ज्यादा चाहिए होते हैं। ठीक है, सो दिस इज इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द एम्पायर एंड किंगडम। ओके, नाउ हियर द थर्ड पॉइंट इज डायनेस्टी। व्हाट इज कॉल्ड अ डायनेस्टी? डायनेस्टी मीन्स होता है बेटा वंश। ओके, हिंदी में इसको हम वंश कहते हैं। दिस इज अ DYNASTY डायनेस्टी। ओके, डायनेस्टी मीन्स होता है व्हेन मेंबर ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर, देन द फैमिली इज कॉल्ड अ डायनेस्टी। मीन्स टू से, जैसे एक ही परिवार का एक के बाद एक रूलर बनता है, राजा बनता चला जाता है, तो वो क्या कहलाता है? डायनेस्टी कहलाते हैं। जैसे पहले ग्रैंडफादर हुए किंग, फिर देन ग्रैंडफादर के जो सन हैं वो किंग, उन्होंने रूल करा, देन उनके जो बेटे हैं उन्होंने रूल करा, तो दिस इज कॉल्ड अ डायनेस्टी। ओके, द मौर्यन डायनेस्टी was with 3 important रूलर। अब मौर्यन डायनेस्टी जो है वो बहुत पावरफुल और बहुत फेमस पॉपुलर डायनेस्टी रही है। इनके 3 मेन रूलर्स रहे हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य। फर्स्ट जो ये स्टार्ट करी थी, वो किसने स्टार्ट करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये आपको हमेशा याद रखना है स्टूडेंट कि दैट इट इज स्टार्टेड फ्रॉम चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज सन बिंदुसारा। और उसके बाद कौन आया? चंद्रगुप्त के बेटे आए, दैट इज बिंदुसारा। देन आफ्टर बिंदुसारा इज अशोका। अशोका इज द सन ऑफ बिंदुसारा एंड ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ मौर्य डायनेस्टी। ओके, yeah students, देखो, I'll just give a very practical example for this dynasty. All of you know that Pandit Jawaharlal Nehru, okay, he was the first prime minister of India. After that his daughter Mrs. Indira Gandhi, then after that her son Mr. Rajiv Gandhi, ठीक है, एंड आफ्टर दैट राहुल गांधी। तो दिस इज ऑल्सो वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ डायनेस्टी। ओके, सो एक ही फैमिली में से जब मेंबर टू मेंबर रूल करते चले जाते हैं तो वो क्या कहलाती है? डायनेस्टी कहलाती है। ओके, तो मौर्य डायनेस्टी में हमने पढ़ा कि जो मौर्य डायनेस्टी है वो चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट हुई, देन इट इज फॉर बिंदुसारा एंड देन आफ्टर बिंदुसारा हिज सन इज फॉर अशोका। ओके, नाउ विल कम टू द पॉइंट ऑफ वेरी बिग किंगडम and empire. This is your first topic which will start from your book. Okay, the loins that we see on our notes and coin have a long history. Students, देखो, आपने अपने नोट्स पे, हमारे जो नोट होते हैं, रुपीज जो होते हैं ना, आपने ये लॉइन देखे? देखो, ये सब आप अपने घर में भी देख सकते हो स्टूडेंट, यू कैन सी, है ना, एंड इट इज सी, लुक एट हियर ऑल्सो, है ना, this is a loin. Okay, so this loin is very familiar to us for the notes and rupees. ठीक है, इसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है। अब इसकी हिस्ट्री क्या है देखते हैं। They are called the loin capital, carved in stone and placed on the top of the massive stone pillar at Sarnath. इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट? लॉइन कैपिटल कहते हैं इसको। ये जो लॉइन है, आपको जो 3 लॉइन्स दिखाई देते हैं, एग्जैक्टली ये 3 नहीं है, दीज आर 4। ये फ्रंट से जो हम इसको देखते हैं तो ये हमें 3 दिखाई देते हैं, एग्जैक्टली ये 4 होते हैं, जो कि एक इसके बैक में होता है। तो ये जो लॉइन कैपिटल है वो स्टोन पे बनाया गया और इसको किस पे प्लेस करा गया? एक बहुत बड़े पिलर के ऊपर इसको प्लेस करा गया। और ये कहाँ लगाया गया? सारनाथ। ओके, सारनाथ एक जगह है बच्चों जहाँ बुद्धा ने एनलाइटमेंट के बाद अपनी फर्स्ट जो प्रीचिंग दी थी, टीचिंग करी थी, वो सारनाथ से ही स्टार्ट करी थी। तो वहां पर ये जो है लॉइन कैपिटल जो है बनाया गया, लगाया गया। दैट वाज द एम्बलम ऑफ अशोकास एम्पायर। एम्बलम मीन्स होता है ध्वज या किसी चीज का प्रतीक होना। ठीक है, तो ये जो कैपिटल, लॉइन कैपिटल जो थे, वो क्या था? अशोका एम्पायर का एम्बलम था। अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ हिस्ट्री एंड ऑन हिज इंस्क्रिप्शन
were carved on pillars as well as on rock surface. ठीक है, अशोका जो है बहुत महान रूलर रहे हैं हिस्ट्री के. उनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो पिलर्स पे लिखे गए हैं. इंस्क्रिप्शन आपको हमेशा बताया है मैंने, हार्ड सरफेस पे लिखे जाते हैं, पिलर्स पे लिखे जाते हैं, रॉक सरफेस पे लिखे जाते हैं. इंस्क्रिप्शंस मीन्स उनकी जो टीचिंग है, उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनके जो रूल्स थे उस समय अपनी किंगडम को चलाने के लिए, अपने एम्पायर को चलाने के लिए, वो सब कहाँ इनग्रेव्ड हुए हैं? पिलर्स पे हुए हैं. एंड दीज आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि मौर्यन एम्पायर जो था वो कैसा था और क्या था उसमें. ठीक है, द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य मोर देन 2300 years ago. स्टूडेंट्स देखो, जो मौर्यन एम्पायर था वो अशोका के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने स्टार्ट करा था. एंड ही वाज चंद्रगुप्त मौर्य. आज से 23 years ago पहले ये डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी. ओके, है ना, 2300 years ago. चंद्रगुप्त was supported by a wise man named चाणक्य. चंद्रगुप्त मौर्य को एक बहुत ही बुद्धिमान इंटेलिजेंट पर्सन ने सपोर्ट करा था, असिस्ट करा था, जिनको किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य और कौटिल्य. ये बच्चों जो आपने अशोका जो सीरियल आया था और चाणक्य जो सीरियल आया था, इफ दो स्टूडेंट वॉच दिस सीरियल दे नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स. तो इस तरह के जो सीरियल्स होते हैं वो हमें बहुत सारी नॉलेज देते हैं हमारी हिस्ट्री के बारे में. ठीक है, तो ये वाइज मैन कौन थे? चाणक्य. और उनको चाणक्य भी कहा जाता था, कौटिल्य भी कहा जाता था. ठीक है, मैनी ऑफ चाणक्य आइडियाज वर रिटन डाउन इन द बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र. चाणक्य की जो नीतियां हैं, चाणक्य जो आइडियाज हैं, वो किस में लिखे गए? एक बुक में लिखे गए जिसको क्या कहा गया? अर्थशास्त्र. दीज आर ऑल द नेम्स यू विल फाइंड इन योर बुक ऑल्सो. ओके, तो जो उनकी जो चाणक्य नीति की जो बुक कहलाई गई है वो क्या कहलाई गई है? अर्थशास्त्र. ठीक है, दिस इज ARTHASHASTRA. इट इज अर्थशास्त्र. ओके स्टूडेंट्स, There were several cities in the empire. मैंने आपको बताया है कि एम्पायर और किंगडम में क्या फर्क होता है ना. एम्पायर में बहुत सारी सिटीज होती हैं. तो अशोका एम्पायर, जो ये मॉडर्न एम्पायर था, वो बहुत ज्यादा बड़ा था. इसलिए क्या करा गया? एम्पायर में बहुत सारी सिटीज बनाई गई. ओके, दीज इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र. पाटलिपुत्र आपको पता है कहाँ है? दैट इज कॉल्ड अ पटना. पटना का नाम सबने सुना है ना, बिहार. यस, पटना को पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था और वो मौर्य एम्पायर की क्या थी? कैपिटल हुआ करती थी. ठीक है, देन तक्षशिला एंड उज्जैन, ये जो कुछ मेन सिटीज थी जो मौर्य एम्पायर की थी. ठीक है, तक्षशिला वाज द गेटवे ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया. स्टूडेंट्स, ये जो तक्षशिला है उसको क्या कहा गया? गेटवे ऑफ द नॉर्थ वेस्ट, है ना, गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल. पहले जो सेंट्रल एशिया, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड सेंट्रल एशिया स्टूडेंट्स, बिकॉज जो पहले इंडिया का जितना भी बिजनेस हुआ करता था वो सेंट्रल एशिया से होता था. तो तक्षशिला को क्या कहा गया है? गेटवे कहा गया है सेंट्रल एशिया का. ओके, एक है ना कहा गया है. स्टूडेंट्स देखो, दिस इज कॉल्ड अ मौर्यन एम्पायर, है ना, विच आई एम टेलिंग यू कि दैट तक्षशिला इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ नॉर्थ टू वेस्ट, है ना. जो तक्षशिला है वो सेंट्रल एशिया, देखो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सेंट्रल एशिया स्टूडेंट्स. इट इज नॉट वेरी विजिबल बट आई एम टेलिंग यू व्हाट इज रिटन हियर. दिस इज हियर, इट इज तक्षशिला, इट इज पाटलिपुत्र एंड इट इज उज्जैन. तो तक्षशिला को क्या कहा गया है? गेटवे. मीन्स टू से, गेटवे मीन्स आपका सेंट्रल, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सेंट्रल एशिया. मीन्स टू से सेंट्रल एशिया से पहले भारत का बहुत ज्यादा बिजनेस हुआ करता था, तो इसको यहाँ का गेट माना गया है तक्षशिला को. ठीक है, देन दिस इज अ पाटलिपुत्र. पाटलिपुत्र आजकल हम इसको पटना के नाम से जानते हैं एंड इट इज इन बिहार. ओके, एंड इट इज इन उज्जैन. तो ये मध्य प्रदेश है. तो पूरे भारत में मौर्यन एम्पायर का राज था ऑलमोस्ट. और उसने इस तरीके से ये सब कुछ नेटवर्क बनाया हुआ था कि कहीं किसी भी अगर और राजा को कहीं से भी कुछ बिजनेस करना होता था या कोई भी अपना रिवेन्यू कलेक्ट करना होता था तो उनको उसकी सीमाओं से होके जाना पड़ता था, है ना. तो दिस इज अ वे टू रूल द
एम्पायर ऑफ मौर्यन ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एम्पायर था अशोका का। एंड सी merchants, officials and craft person probably lived in this city। ये जो सिटीज थी, हमारी जो मेन सिटीज थी, पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन जो सिटीज थी, वो उसमें ज्यादातर कौन रहते थे? मर्चेंट्स मीन्स व्यापारी, ऑफिशियल्स मीन्स अधिकारी, और क्राफ्ट पर्सन मीन्स जो कलाकार होते हैं, जो आपकी क्राफ्ट्स बनाते हैं, ठीक है, वो लोग इन सिटीज में रहा करते थे। इन अदर एरिया देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। ओके, और जो दूसरे एरिया हुआ करते थे उसमें फार्मर मीन्स किसान और हर्डर्स रहते थे जो पशुपालन का काम करते थे, ठीक है। इन सेंट्रल इंडिया वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल। ठीक है, सेंट्रल इंडिया में क्या थे? बहुत सारे फॉरेस्ट हुआ करते थे, ठीक है, और जहां से जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस मीन्स फॉरेस्ट से जो जंगलों से मिलने वाला उत्पादन था वो मौर्यन एम्पायर को जाता था और शिकार किया जाता था किसका? जानवरों का। स्टूडेंट्स में यहाँ कोई फॉरेस्ट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस थी मौर्यन एम्पायर में। फॉरेस्ट जो था, जिस एम्पायर में जितने फॉरेस्ट होंगे या जितनी किंगडम्स में जो फॉरेस्ट होते हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। क्यों हुआ करते थे? क्योंकि फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे रिसोर्स मिलते थे, बहुत सारे प्रोडक्शंस मिलते थे, जिसकी वजह से ये होता था जिस राज्य के पास जितने फॉरेस्ट हैं उसके पास उतना पैसा है, ठीक है। हाँ, तो देखो फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट थे? क्योंकि फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है? टिम्बर मिलता है। टिम्बर मीन्स लकड़ी। तो पहले जो बिजनेस हुआ करता था वो हुआ करता था आपका थ्रू ये वाटर रूट, सी रूट के थ्रू। तो सी रूट पे क्या चलेंगे? शिप चलेंगे। वो किससे बनती थी? आपकी लकड़ी से बनती थी शिप्स वगैरह जो हुआ करती थी, या चंदन की लकड़ियां हो गई। चंदन एक बहुत कॉस्टली वुड होती है, आपको सबको पता है, ठीक है। ये सब हमें कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट। गोंद हो गई, रबड़ हो गई, है ना, बहुत सारे आपके फूल जो होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं, जिससे इत्र बनता है, परफ्यूम बनता है। और उज्जैन जो था स्टूडेंट, वो आज भी अपने इत्र के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉरेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, और मैक्सिमम सेंट्रल एशिया का जितना भी फॉरेस्ट था वो मौर्यन एम्पायर के अंदर आता था। तो इस तरीके से जो अशोका था, उसका जो मौर्यन एम्पायर था वो बहुत वास्ट था, वाइडली स्प्रेडेड था, और उसने बहुत उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत अच्छा था, सो दैट कि उसने इतने टाइम तक रूल करा है और इंडिया को बहुत अच्छी पोजीशन पर एक स्टैंड करा है। तो अभी हमने इस चैप्टर में इस टॉपिक में जो हमने स्टडी करी है वो लॉयन कैपिटल की करी है, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि जो हमारे नोट पे, हमारे रुपीज या हमारे कॉइन्स पे जो ये 3 लॉयंस की जो है पिक्चर है वो कहाँ से आई, ठीक है। तो ये जो है वो लॉयन कैपिटल कहलाता है, जो हमें किसने दिया? अशोका ने दिया, क्योंकि ये एक अशोका एम्पायर का एम्बलम है, ठीक है। सो होप सो स्टूडेंट यू हैव क्लियर दिस टॉपिक एंड हैव यू अंडरस्टूड। So whatever the queries regarding this topic, you can send me in WhatsApp group. Okay, and yes, one thing is that I know that is your non-summation worksheet, but I have started a new chapter, so please don't miss the video. Okay, class 6, you have to do your study very seriously. Okay, thank you. Have a nice day.